Hi guys, welcome to Ask MBA. My name is Neha and today in this video with the title itself you guys must have guessed कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं about exam pattern of SNAP, what colleges you should be applying, क्या score पे कितना percentile है, कब admit card आने वाला है, कब क्या क्या सिलेक्शन क्राइटेरियाज है सिम्बोसिस के अंदर एंटर करने के लिए। तो मेक श्योर कीजिए कि आप एंड तक ये वीडियो देख रहे हो बिकॉज हियर वी आर आल्सो गोना टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स you guys need to go through for your SNAP examination. If you have given CAT already, there are few topics which you need to brush up. Ask MBA students, already we have done with our verbal and LR session. Now this week on Saturday, we are going to brush up with the quant and DI and DS section. So let's quickly understand क्या क्या चीज है and guys please make sure you're liking our video and also commenting on the comment box below because even we are very much eager to share all the latest updates as so many exams are around. Just CAT is done, now there is NMAT which is going on, there is SNAP, then there's going to be CMAT, then there is CT, the GDPI sessions which are going to come up, results are going to come up, so many things. So I understand even as a student it is too much for you, but just understand, just talk to us. The numbers are given in the description box. Again, if you are not a part of Ask MBA, still you can connect to us, get your doubts clear. Not wasting much time, let's quickly start. ठीक है, स्नैप का एग्जाम है, 3 अटेम्प्ट्स है, जैसे इसमें पहले से आपने रजिस्टर कर रखा है, फर्स्ट लास्ट सेकंड लास्ट सिर्फ सिंगल अटेम्प्ट जो भी है, वी नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड क्या क्या टॉपिक्स हैं, वी नीड टू गिव 100% इन ईच अटेम्प्ट व्हिच यू गाइस हैव डिसाइडेड. ठीक है, 8 दिसंबर 15 दिसंबर एंड आपका 21 दिसंबर को एग्जाम्स है. 2 ऑफ दिसंबर को 8 ऑफ दिसंबर का जो एग्जाम है उसके एडमिट कार्ड्स आ जाएंगे. आपको मॉक उसी टाइम पे देना है. आपको एडमिट कार्ड पे जो भी डिटेल्स आएंगे, आपको सेंटर्स एंड ऑल वी नीड टू रिलोकेट. ठीक है, ये सारा हम बात करेंगे 2 दिसंबर के वक्त. स्नैप के एग्जाम के रिजल्ट्स आपके आ जाएंगे 8 ऑफ जनवरी. सो एग्जैक्टली फ्रॉम नाउ इफ यू कैलकुलेट टुडे इज 20th, देन 10 दिन में आपका स्नैप का एग्जाम है जो जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं एंड उसी के 1 महीने बाद आपके रिजल्ट्स आउट होने वाले हैं स्नैप के लिए. उसके बाद आपके सिलेक्शंस एंड बाकी का प्रोसेस हम आगे की वीडियो में बात करते हैं. ठीक है, ठीक है, अभी जानते हैं एग्जाम का पेपर पैटर्न क्या है. इंग्लिश VARC 15 क्वेश्चंस. ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड DI एंड DS हैज टोटल 20 क्वेश्चंस. एनालिटिकल रीजनिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग दोनों मिला के आपके 25 क्वेश्चंस यहाँ पे है. 60 questions, time limit again 60 minutes, no much time. I mean you guys don't have much time to clear out all the questions and everything. It is all about your concepts which you guys have cleared already if you have given CAT, and if not you're starting from scratch. It is all about the basic concept क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है एग्जाम के अंदर कि आप एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर सको. इट इज ऑल अबाउट डिसाइडिंग दोज परफेक्ट क्वेश्चंस. ठीक है, +1 for each correct answer and 0.25 for each question which goes wrong. ठीक है, ये हो गया आपका स्नैप के एंट्रेंस एग्जाम का पेपर पैटर्न. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इसके बाद अभी क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हमें मे बी वी नीड टू ब्रश अप अगेन और फ्यू टॉपिक्स विच आर मस्ट हैव इन योर स्नैप एंट्रेंस एग्जाम. सबसे पहले हम वर्बल की बात करते हैं. 15 क्वेश्चन इसमें है. Sentence completion, analogy, one word substitution, vocabulary, idioms and syllogisms, synonym, antonym, word one odd one out. आपका sentence correction फिर से यहाँ पे repetition आ गया है. jumbled paragraph, active and passive voice. ठीक है, ये सारे आपके major topics हैं which would be asked in your SNAP entrance exam. Again guys, must have tip, and then in the link which is given in the description box below, vocabulary is a very important, it plays a very important role in your SNAP entrance exam. We have a podcast of Ashish sir, बाबा जी का ज्ञान करके है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है. उसके अंदर A से लेके Z तक के सारे different alphabets and words. And touch wood, there are many words which have been asked since other entrance exams जैसे vocabulary के related है. बस क्या करना है, पॉडकास्ट के लिंक पे जाओ, हेडफोन्स लगा लो, रात के जब भी वी आर ट्रैवलिंग और एनीथिंग, जस्ट लिसन टू दोस वर्ड्स. इट्स रियली नाइस. एटलीस्ट कुछ ना कुछ स्ट्राइक अप होगा एग्जाम के वक्त. एंड यही चीज आपके बाकी सारे जो टॉपिक्स है या आप बोल दो जो भी सेक्शंस हैं उसके लिए भी काम आने ही वाला है. तो ये काफी इंपॉर्टेंट रोल है.
आपके VRC में, तो मेक श्योर कीजिए कि आपको लिंक में जाके ये सारी चीजें सुन रहे हो। वर्बल सेक्शन के लिए 15 क्वेश्चन है, 60 मिनट्स का टाइम है। either you know it or you don't know it, it is all about your concept and understanding towards this language, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन एनालिटिकल एंड LR, इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स है गाइस, यू कैन जस्ट टेक अ स्नैपशॉट और अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस सो दैट यू गाइस हैव एन आइडिया कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। लीनियर और मैट्रिक्स अरेंजमेंट है, यहाँ पे विजुअल रीजनिंग है, सिलोगिज्म्स है, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स है, कॉज एंड इफेक्ट, ब्लड रिलेशन, फैमिली ट्री क्वेश्चंस, coding, decoding, assertion and reasoning, analogy regarding to series and critical reasoning. Again, very doable question. जो white books कर रहे हैं, make sure आप उसको revise करो. Already this topic has been conducted in our lectures. So एक बार फिर से revise करो. Just remember what all things were taught. एंड कॉन्सेप्ट्स को एक बार गो थ्रू करना, सॉल्व एज एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम योर मॉक्स। लॉगिन आईडीज में दिए हुए टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, उसके अंदर एक एक सेक्शन वाइज एक एक क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने के लिए देखना। ये सारे टॉपिक के क्वेश्चंस आपकी आईडी में है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कॉन, DI एंड DS। इसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आपका नंबर सिस्टम एक आ जाता है, अलजेब्रा है, बायनोमियल थ्योरम है, प्रोबेबिलिटी, इनइक्वालिटीज, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्टर्स एंड इंडाइसेस, अगेन ज्योमेट्री, लॉगरिथम्स, ग्राफ्स, पाई चार्ट, मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस, PNC, ट्रिग्नोमेट्री, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, APGP। फिर आपका सीरीज आ गया, बार ग्राफ, एरिथमेटिक, अगेन ओवरऑल, सेट थ्योरीज, मेंसुरेशन एंड टेबल्स। अभी इस तरीके से फॉर्मेट में, बिकॉज आई हैड मेड अ वीडियो बिफोर दिस and my voice was not, it didn't capture the voice. I had to remake this video, so I had to adjust these things out here because the time limitation and so many exams around. तो guys इस चीज के लिए एक और लाइक अगर आपने नहीं किया तो कर देना, ठीक है। इसके बाद हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं इस वीडियो के अंदर। काफी ज्यादा इसमें कॉन्सेप्ट्स है, काफी सारे क्वेश्चंस है, एंड इट इज लाइक इनफाइनाइट, इट गोज एंडलेस। यू टेक इट फ्रॉम समवेयर, यू टेक इट फ्रॉम योर, यहाँ से ले लो, बुक से ले लो, किसी और के नोट से रेफर करो, इट इज एंडलेस। इट्स ऑल अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग, इट इज ऑल अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स व्हिच यू नीड टू गो थ्रू फॉर नंबर सिस्टम। तो ज्यादा उस पे अपना सिर मत मारो, हार्डली ही क्वेश्चंस आते हैं, बाकी की सारी चीजें भी हैं, तो ऑटोमेटिकली इट इज ऑल अपॉन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू आर अटेम्प्टिंग, एंड वो टाइम पे, वो टाइम लिमिट के अंदर कौन सा आपको क्वेश्चन स्ट्राइक होता है उसी के ऊपर है। तो ज्यादा टाइम इन्वेस्ट मत करना, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि क्या परसेंटाइल है, क्या स्कोर है, आपको मॉक के अंदर कितना स्कोर आ रहा है, अपने कौन से कॉलेज का फॉर्म भरा हुआ है, तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये कॉलेज से आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आए, एंड कैसे आगे का प्रोसेस है, ठीक है। 60 minutes, 60 questions. For each correct question, you're getting 1 mark, and there is a negative marking of 0.25. ठीक है, on it. अभी हम बात करते हैं 99.9 परसेंटाइल की। इसके लिए आपको कितना स्कोर की जरूरत है, यहाँ पे 92.5, ये लास्ट ईयर का है गाइस। इस पे टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड, इट माइट चेंज, इट माइट फ्लक्चुएट डिपेंडिंग अपॉन द रजिस्ट्रेशंस एंड रेस्ट अदर थिंग्स, स्टार स्टार स्टार। तो प्लीज ऐसे मत बोलना हमने अपने ये बोला था, अभी इतना स्कोर आया तो ऐसा क्यों, ऐसे क्यों हुआ, तो नहीं, दिस इज एस्टिमेशन, दिस इज हाउ इट इज। इतने स्कोर पे इतना परसेंटाइल लास्ट ईयर के हिसाब से, एंड एज पर द प्रीवियस ईयर, दिस इज हाउ इट इज, ठीक है। 48 अगर आपका स्कोर आ रहा है 48 प्लस, तो 99.7 परसेंटाइल इज एक्सपेक्टेड, 99 परसेंटाइल 45 प्लस, 43 98 परसेंटाइल, 95 परसेंटेज के लिए 40 प्लस का स्कोर रहना चाहिए, 93 परसेंटाइल अराउंड 38 प्लस। इन शॉर्ट, अगर आपको एग्जाम के मॉक के अंदर अपने जो दिए हुए हैं, आपका ट्रस्ट होल टारगेट होना चाहिए 45 प्लस, तब जाके ये पॉसिबल होगा, एंड दैट्स व्हेन यू विल बी गेटिंग 99.99 परसेंटाइल। मतलब जो टॉप के 2 कॉलेजेस हैं, मेन कैंपसेस ऑन पुणे, which is your SIBM and MHRDA के लिए आपका मॉक के अंदर का स्कोर टारगेट अभी 45 प्लस के अराउंड होना ही होना चाहिए, नहीं करेक्ट अटेम्प्ट्स उतने आने ही चाहिए, ठीक है। अगर आप स्टक हो 40 के अंदर, प्लीज टॉक टू अस, या आप 35 प्लस में ही अगर आप स्टक हो, यू वांट टू इंक्रीज योर स्कोर, there is something which you are going on, your concepts are clear, but the approach is going somewhere on a different side.
So please talk to us about it. We'll make sure कि we'll have a proper strategy कि कैसे इस एग्जाम को टैकल करना है. तो ये चीज के ऊपर ध्यान देना कि आपको मॉक में कितना आ रहा है, ये चीजों से ही क्लियर होगा. बिकॉज आर टारगेट फॉर 99.99 परसेंटाइल हैज टू बी एटलीस्ट 50 प्लस का स्कोर. मतलब 60 मिनट्स है, आपके 60 क्वेश्चंस हैं, ये कैसे करेक्ट होगा ये हमें जानने के लिए गाइज यू नीड टू कम एंड टॉक टू अस. वी कैन डिस्कस अबाउट इट एंड definitely the scores are going to be that way. Already we have many students in Symbiosis. As per that, this score getting is not that difficult. You just need to come and talk to us. ठीक है. अब हम बात करते हैं कि अलग अलग कॉलेजेस हैं, क्या क्या कट ऑफ्स हैं इनके. एंड इफ यू गाइस हैव नॉट येट फिल द फॉर्म्स, आपके डैशबोर्ड पे जब आप सिम्बोसिस के अंदर रजिस्ट्रेशन के अंदर लॉग इन करते हो, यू ऑलरेडी नो लिस्ट ऑफ कॉलेजेस व्हिच यू हैव अप्लाइड फॉर. There are some registrations which are still on. I'll be making a video on it. But for now, let's just tentatively understand कि हमने पहले स्कोर देखा और कितना परसेंटाइल हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं वो हमने देखा. तो just relate with the colleges which you guys have applied for कि कितना परसेंटाइल पे आपको कॉल आ सकता है फर्दर राउंड के लिए. ठीक है. अगर हम बात करते हैं SIBM मेन कैंपस पुणे की 98 परसेंटाइल, देन यू हैव MHRD अराउंड 97 टू 98 तक ये जाता ही जाता है गाइस. अगेन एज आई मेंशन्ड, टर्म्स एंड कंडीशंस डिपेंडिंग अपॉन द वेरियस फैक्टर्स ये चेंज हो सकते हैं. सॉरी. फिर आपका आता है मेन कैंपस, अगेन SIIB का है 90 परसेंटाइल. फिर आपका SIOM आता है 90, SIOM आता है अगेन 92 परसेंटाइल पे. ये एक्चुअली SIBM इसका है, बिजनेस मैनेजमेंट बैंगलोर का. देन यू हैव SIOM नासिक, देन यू हैव SCR कंप्यूटर स्टडीज एंड रिसर्च अगेन पुणे 82 परसेंटाइल. देन यू हैव सिम्बोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेज SIMC का हो गया आपका 85 परसेंटाइल अराउंड. अगर ये परसेंटाइल को हम कंपेयर करें इस वाले टास्क शीट के साथ 85 टू 97 परसेंटाइल यानी 40 प्लस का अगर आपका टारगेट है, देन ओनली इजीली यू कैन कैप्चर ऑल दीज कॉलेजेस व्हिच आर जस्ट मेंशन्ड. द टॉप SIBM, MHRDA, SIIB सबका आपका स्कोर अगर 45 to 50 के अराउंड जा रहा है, then only you can expect calls from these colleges. ठीक है. Still 10 days are there, we can work on it. अगर आप stuck हो ये वाले स्कोर के अंदर, ठीक है. If not this, still there is a improvisation, we can discuss about it. ठीक है. अब हम बात करते हैं, स्कोर हो गया, परसेंटाइल हो गया, हमने सिलेबस डिस्कस किया है. क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है? सबसे पहले जैसे ही आपका स्कोर आता है, देयर इज अ रिजल्ट व्हिच शुड बी गेटिंग ऑन January 8, 2025, न्यू ईयर्स. ठीक है. How much ever test you have given or registered, 1, 2, 3, how much ever exams you have given, the best score out of all these three would be considered as your overall percentile. अगर वो मैच हो रहा है, अगर समझो इसके अंदर अपने अराउंड 40 अटेम्प्ट्स हैं, यहाँ पे समझो यहाँ पे सिर्फ 38 का स्कोर आ रहा है एंड यहाँ पे सेकेंड वाले इसमें 45 स्कोर है, देन दिस टेस्ट मार्क्स वुड बी कंसिडर्ड फॉर योर फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया. ठीक है. इसके बाद स्कोर आने के बाद आपको कॉल लेटर आता है कि यस यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर फर्दर राउंड. ये इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया है. उसके अंदर आपका 50% जो है वो स्नैप का स्कोर कंसिडर किया जाता है. आपके ग्रेजुएशन के स्कोर्स भी इसमें रहते हैं, 50% फॉर ओपन, 45 फॉर SC and ST. फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू का राउंड होता है, 40% उसका कंसिडरेशन होता है एंड देयर इज ग्रुप एक्सरसाइज व्हिच इज 10%. नाउ देयर माइट बी चेंजेस बट ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट आल्सो दीस आर द थिंग्स व्हिच आर already mentioned. These rounds would be done after your results by Jan and by Feb. Most probably ये timeline पे आपके interviews and बाकी की चीजें align होगी. ठीक है. I hope you guys have gone through the whole video. If you guys have any doubts, anything, please make sure you're commenting in the comment box below. And keep yourself calm, healthy, don't get sick, have healthy food, everything. The climate is changing. You're in Mumbai, well and good, थोड़ी सी ठंड बढ़ रही है तो मेक श्योर करो कि आप वार्म क्लोथ्स में हो, कॉफी पी रहे हो, गर्म पानी पी रहे हो और बीमार नहीं पड़ रहे. एग्जाम्स आर अराउंड, सो मेनी थिंग्स गोइंग अराउंड. प्लीज बी हेल्दी एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रेप. इफ यू हैव एनी डाउट्स, प्लीज गेट इन टच विद अस. थैंक यू.